वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हैप्पी? तो रिजल्ट आ गए हैं और आप लोग अब तक 11th क्लास में एडमिशन ले चुके होंगे, और नहीं भी लिया है तब भी ये राइट टाइम है जहां से कि आप 11th की क्लास स्टार्टिंग से शुरू कर सकें। राइट? तो योर फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट इन फिजिक्स। सो पहले स्टार्टिंग में बहुत जरूरी होता है 10th तक जो आपकी स्टडी का अप्रोच होता है वो रटने का ज्यादा होता है, अंडरस्टैंडिंग का कम होता है। बट अब वो स्टेज आ गई है जहां पर आपको चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है? बिकॉज अब जो सिलेबस है आपका लेंदी होगा और हर पॉइंट को आपको कंक्रीटली और एक्यूरेटली समझना होगा। राइट? सो before coming to unit, dimension and measurement, just in few words, let's see what physics is. तो आप सभी का स्वागत है। I welcome you all and let's see what physics is. Right? So, in day-to-day language, in physics, you study branch of science which deals with the study about nature एंड नेचुरल फेनोमेन। यानी इस नेचर में जो कुछ भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सभी इंसिडेंट के बारे में समझना और जानना, इसकी स्टडी करना ही फिजिक्स है। राइट? अब इसी बात को अगर दूसरे सेंस में हम लोग देखें, कोई भी काम करना चाहिए चाहते हैं आप, सो टू डू द वर्क you need energy, right? Energy required to do the work. So if you see in this sense, what you can say, since to do the activity, to do the work, we need energy, so detection, conversion and utilization of various form of energy present in this universe. Can we say that? डिटेक्शन यानी पता लगाना, ये जानना कि इस दुनिया में कौन कौन सी एनर्जी है। डिटेक्ट करना, पता लगाना, जानना, और वो एनर्जी कितनी है। सो नेक्स्ट स्टेज कम्स वंस यू नो दिस इज एनर्जी अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स, सो कैन बी यूज इट। क्या हम उसे अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं? ये बल्ब जल रहा है आपके सामने, ये फैन चल रहा है आपके सामने, एसी चल रही है आपके सामने, बट व्हाट यू डू, यू आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ये बल्ब का काम है। यू आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज एयर। ये फैन का काम है। सो सम सॉर्ट व्हाट यू डू, यू कन्वर्ट one form of energy into other form, that is what is conversion. And then final stage is utilization, how you are going to use it. So we can say that process of detection, conversion and utilization of various form of energy present in this universe. Right? Now, also in other way you can say that when you want to go study about nature and natural phenomena, you want to detect, convert and utilize energy, so you have to go certain principle, and to do study about those principle you need certain quantities that is said to be physical quantity, yani physical quantities associated with the study of nature and natural phenomena. So the moment question comes, how much is the quantity, that means you need to do certain measurement. Without measurement you can't determine the magnitude of quantity, direction of quantity. So
we can say indirectly what a physics is. Physics is direct or indirect measurement of various physical quantities associated with nature and natural phenomenon. Is that clear? And that's the reason your first chapter is unit, measurement and dimension. So let's go ahead. So the unit, measurement and dimension. The first word which we have to understand here is physical quantity. So anyone can reply what a quantity is, what a physical quantity is, what a chemical quantity is, what a biological quantity is. So quantity means certain magnitude and direction, and magnitude is numerical value with unit. So if you talk about mathematics, the word is only quantity. Quantity means which has certain numerical value. But what physical quantity is? So physical quantity is the quantity which can be measured and describe certain law of physics. Describes certain law of physics said to be physical quantity. If it describes certain law of chemistry, it is said to be chemical quantity. If it is describing certain law of biological phenomenon, that is biological quantity, right? तो इस समय बात फिजिक्स की हो रही है, तो we will talk about physical quantity. So clearly mentioned, physical quantity is the quantity which can be measured. First point, which can be measured and describe certain law of physics is the physical quantity. अब आप देखें कि इस दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह की हैं. ठीक है, ये बिल्कुल वैसे जैसे किसी फैमिली की बात करो तो मालिक एक है, बाकी सब मेंबर हैं. कुछ बात समझ में आ रही है? तो सभी मेंबर मालिक पर डिपेंड करते हैं, लेकिन मालिक मेंबर पर डिपेंड नहीं करता. ऐसा ही कुछ अगर देखा जाए तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है इन्हें दो पार्ट में आप बांट सकते हैं. एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा नाम दिया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. तो ये मालिक जैसा है और ये मेंबर जैसा है. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल, तो इस समय अगर पूरे फिजिक्स की बात की जाए तो केवल और केवल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. मैं सातों को एक साथ रख दे रहा हूं, जबकि जनरली लेट मास टाइम. सो इन मैकेनिक्स यू डिड अबाउट. सो टिल नाउ in whole physics 7 fundamental physical quantities are there. What are they? Length, mass, time, temperature. पूरे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी है और वो है टेम्परेचर. और पूरी 12th की फिजिक्स में एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. बाकी सब डेराइव्ड क्वांटिटी है. Electric current, amount of matter, luminous intensity of light. This is what is 7 fundamental physical quantity in your whole physics. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. अब बाकी जितने भी क्वांटिटीज हैं वो सब के सब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं. तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ये हैं क्या? The physical quantities which are derived from the fundamental quantities, यानी ऐसी quantities जो derive की जाती हैं, पैदा की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है. कहां से?
फंडामेंटल क्वांटिटी से। इन्हीं सातों फंडामेंटल क्वांटिटी में से किसी 1, 2, 3, 4 से मिल करके बनी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल डेराइव्ड क्वांटिटी का दिया गया वेलोसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी है जो लेंथ यानी फंडामेंटल क्वांटिटी है, दूसरा टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, इन दोनों से मिलकर बनी है वेलोसिटी और ये डायरेक्ट क्वांटिटी है। उसी तरह से जब आप फोर्स की बात करें तो फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन डायरेक्ट क्वांटिटी है, वर्क force into displacement, momentum, mass into velocities, all these quantities. So each chapter either there is fundamental quantity or there is derived quantities. So how that quantity is derived from fundamental quantity, this is what you are going to do. So let's see the measurement. बताएं measurement क्या है, कौन बताएगा? तो बहुत सारी एक्टिविटी मेजरमेंट की आप करते हैं और जो आप करते हैं वही अपने शब्दों में डालना है, वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कोई आपसे घर में आए पूछे कि आपके रूम की लेंथ कितनी है, तो आप क्या करेंगे? आप उठेंगे, अच्छा रुक जाओ बताता हूं, नहीं कुछ दिखाई दिया तो हाथ से ही नापना शुरू किया, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, 5 हाथ, आपने कहा 6 हाथ है, तो हाथ क्या हुआ? ये स्टैंडर्ड है। आपने कहा कमरे की लेंथ 6 हाथ है, तो हाथ क्या है? स्टैंडर्ड है, इसी को यूनिट कहा गया। और लेंथ ऑफ रूम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। और कितने हाथ है? यानी 6 हाथ है, 6 हैंड, यानी 6 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो क्या किया क्या आपने? यानी जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसे सर्टेन स्टैंडर्ड लिया और उस स्टैंडर्ड से उसका कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके आपने उस क्वांटिटी का मेजरमेंट किया, मेजरमेंट से मिला क्या आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब वही चीज आपकी बुक में लिखा हुआ, जैसे कोई पूछे कि मेजरमेंट क्या है, व्हाट मेजरमेंट इज, सो प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, तुलना करना, कंपेयर करना, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ सर्टेन स्टैंडर्ड and this selected standard is called unit. So how many times standard, that means unit, is involved in given physical quantity, that is what represents the magnitude. So magnitude yani measurement determines the magnitude of physical quantity. And what magnitude is? Magnitude is product of numerical value, means how many times unit standard involved in the given physical quantity. So and numerical value into unit, both in combined provides the magnitude of physical quantity. So for example, say length of a box. So you said 5 meter. So meter is one of the unit. And जैसे हाथ ने कहा कि हाथ का एक हाथ से यदि 5 है, आप लट्ठा भी ले सकते हो, 5 लट्ठा, दिस इज मीटर। अब लट्ठा या हाथ, तो ये जगह जगह कम और ज्यादा होगा, तो पीपुल डोंट रिकॉग्नाइज इट। तो आपको एक ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए जिससे सारी दुनिया, होल वर्ल्ड एग्री हो। ऐसा ना हो कि अभी आप इंडिया में, अमेरिका में जाओ तो उसकी वैल्यू कुछ और हो, तो nobody will accept it. And today's transaction is worldwide. That is the reason the selected standard should be such that its value should not change with the change in place, position and time. First thing. Second thing, whole world should be agreed to adopt it.
ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, ना कि जो माना चाहा वही स्टैंडर्ड मान लिया। बट काम चलाने के लिए अब आप घर में ही हो, किसी ने कहा थोड़ा राइस दे दो, आपके पास बटखरा नहीं है, तराजू नहीं है, तो आप एक कटोरा ही ले आए, 5 कटोरा ये राइस ले जाओ, तो वो कटोरे भरकर राइस वापस उसी से कर देंगे, आपका काम तो चल जाएगा। बट होल वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू एग्री विद दिस, so that is the reason selected standard means unit should be such that its value should not change with the change in place, position and time, and whole world should be agreeing to it. So meter is one of the standard that is said to be unit for the length. So 5 meter is magnitude of the length of box. Is that point clear? Similarly, if you say weight of rice, मार्केट में गए राइस खरीदने के लिए, आपने लिया 10 kg, तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है n और kg क्या है u, यानी यूनिट। सेलेक्टेड स्टैंडर्ड which whole world is following that. So 10 kg is the unit for the weight. Similarly, duration of the say a day, duration of the day, say it is 24 hours. So 24 is numerical value and hour is the unit which is whole world is accepting that. ठीक है? So numerical value with unit provides the magnitude of given physical quantity. Is that clear? So to perform measurement, we have to have a selected standard, वही unit है. So till to date, what are the various system of unit available to perform measurement? तो इनिशियली केवल मैकेनिक्स था, ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। उस समय 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, और वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम। आज साथ में जो आपने पहले लिखा, पर शुरू में ये तीनों थी, तो तीनों के लिए स्टैंडर्ड चूज किया गया, और ये स्टैंडर्ड क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, जिसे कहा जाता है MKS, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड। मीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास, सेकेंड इज यूनिट ऑफ टाइम। फिर CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, C stand for centimeter and G stand for gram and S stand for second। तो यहां देखें तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम का एक ही यूनिट है, वो है सेकेंड। और ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट FPS, फुट पाउंड सेकेंड। फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास, सेकेंड इज यूनिट ऑफ टाइम। एंड न भूलें, यह है आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और यही आपका नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है। इज दैट राइट? So far you have seen the system of unit, that is MKS system of unit, CGS system of unit, FPS system of unit. Now this is standard international system of unit, SI system of unit, which is whole world is following for today. ठीक है? So one of the office named as International Bureau of Weights and Measurement, IBWM, International Bureau of Weights and Measurement. This office is established at Paris head, right? इसका काम क्या है? This determines the units for the fundamental quantity and 2 supplementary quantity, which is followed by the whole world. So what are the various fundamental unit quantities in the SI system of unit?
So there are 7 fundamental quantities जो पहले भी लिख चुके हैं आप, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ मैटर and luminous intensity of light. These are the fundamental quantities. 7 ही है केवल, only 7. So in SI system, unit for these fundamental quantity, for length meter, for mass kilogram, for time second, for temperature Kelvin, for electric current एम्पियर, अमाउंट ऑफ मैटर मोल, ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूनिट इज कैंडेला। तो पहले तो फंडामेंटल क्वांटिटी को जानना, उसका यूनिट जानना, देन ये भी आपका फर्ज जाना कि हाउ 1 मीटर इज डिफाइंड, हाउ 1 किलोग्राम इज डिफाइंड, हाउ 1 सेकेंड इज डिफाइंड, how 1 Kelvin, 1 ampere, 1 mole and 1 candela. So apart from fundamental quantity के अलावा there are 2 supplementary quantity. They are not known as fundamental quantity. तो supplementary quantity 2 हैं, एक तो प्लेन एंगल, और इस प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, और दूसरा है सॉलिड एंगल, इसका यूनिट है स्टेरेडियन. सो दीज आर द सिस्टम ऑफ यूनिट. ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट मीटर 1 मीटर इज, व्हाट 1 सेकेंड इज. सो गो थ्रू ऑल अबाउट फर्स्ट ईच टर्म, ट्राई टू सेट इन माइंड, और रिमेंबर magnitude is inversely proportional to unit, that is standard unit selected. If the unit is smaller, magnitude is going to be larger. If unit is greater, then magnitude is going to be lesser. और ये हर एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इसे नहीं भूलना है, राइट?